ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 4 ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਸਿੱਖ ਮਤ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ 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 ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਨਾਤਨੀ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੈਨੀ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਨੇ, ਸਨਾਤਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ। ਦੁਖੀ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ, ਦੁਖੀ ਨੇ ਜੈਨੀ, ਦੁਖੀ ਨੇ ਬੋਧੀ ਔਰ ਦੁਖੀ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਗੀ ਨੇ। ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਸੋਗ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਗੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ 4 ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਔਰ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਧਰਮ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਲਾਮ। ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਗੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਗ
ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ ਬਾਲੀ, ਬਾਲਿਕਾ ਵਰ ਯੋਗ ਕੰਨਿਆ। 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 26 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬਣਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਲਿਕਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਗੀ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰਿੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰੋਗ ਅੰਦਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਗ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਰੋਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਪੀੜ ਨਾਲ। ਰੋਗ ਪੀੜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੋਗ ਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋਗ ਪੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਰੋਗ ਪੀੜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਗ ਵੇਦਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਵੇਦਨਾ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਵੇਦਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਵੇਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਬਾ ਨਾਲ ਹੈ ਬੇਦਨ। ਐਸੀ ਵੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ ਭਈ, ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਾਈ। ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, इलाज ही कोई नहीं, इलाज ही कोई नहीं। वेदन पीड़ा, वेदन दर्द, वेदन ज्ञान। दूजा अर्थ इसका ज्ञान। वेद विद्या तो बनया शब्द, शब्द कोश दे ਇਹਦੇ अर्थ दो ने। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। हैरानगी होगी, दोवां अर्थां दा जमीन आसमान दा फर्क है। वेदन दे अर्थ पीड़ा, वेदन दे अर्थ पीड़ा दर्द, ते वेदन दे अर्थ ज्ञान। ऐसा क्यों? ज्ञान पीड़ा दा हुंदा है। पीड़ा करके पता चलता है, जिवें सिर दे च पीड़ा है तो अज ज्ञान पीड़ा दा है। समझ इस सिर दी है, अगे पिछे ते सिर दा कदी पता नहीं चलिया, पर अज जोर दा सिर दुखण लग पिया ते इंज लगता है जिवें बस मैं सिर ही हाँ और कुछ ही नहीं। सारा ध्यान सिर दे च है। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहंदे ने। ज्ञान किसदा मिलता है? जिहदे च ध्यान होवे। जिहदे च ध्यान कोई नहीं, उहदा ज्ञान भी कोई नहीं। एक स्पष्ट गल है,
चोली दामन दा साथ है ध्यान दा ते ज्ञान दा, कट्ठे रहंदे ने। ध्यान सिर दे उत्ते है क्योंकि सिर दुखदा पिया है, तो हुण ज्ञान भी सिर दा ही है। मैं सिर हाँ, मैं सिर हाँ। अगे पिछे ते पता ही नहीं चलता मूंह दे च दंद हैन भी सही कि नहीं। जद कदी दाड़ दुखदी है, भयंकर पीड़ा होती है, सारा ध्यान दंद ते चला जाता है। बार बार उंगल भी उस दंद ते चली जाती है। ते जब सारा ध्यान दंद ते चला गया, सारा ज्ञान भी दंद ते ही चला गया। हुण बस दंद ही दंद दिखाई देंदा, होर कुछ भी नहीं। सारा शरीर भुल जाता है, इको दंद चेते रह जाता। किधरे कन दुखने आ गए ते भयंकर पीड़ा, भयंकर पीड़ा। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है, जिवें इंज पता चले बस मैं कन्न ही हाँ और कुछ भी नहीं हाँ। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है। तो जब ज्ञान कन्ना दे चला जाता है तो ध्यान भी कन्ना दे। जिस दिन किधरे गुरु ना करे अखां दुखने आ जांदियां, तो सारा ध्यान अखां दे, तो ज्ञान भी अखां दा। सारा दिन समझ विच अखां ही घुमदियां रहिंदियां, सारा दिन ध्यान अखां दे, सारा दिन समझ भी अखां दी। बस जिवें मैं अख हां और कुछ भी नहीं। गुस्ताखी माफ, कदी पेट दुखने आ गए, वादू घाटू खाधा गया, मरोड़ पै गए, बड़ी पीड़ है, तो सारा ध्यान पेट ते चला जाता है। फिर सारा ज्ञान भी पेट। ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे ने। इस वास्ते संस्कृत भाषा ने एक शब्द घड़े है, वेदन, पीड़ा, वेदन, ज्ञान। दो अवस्था नूं बयान करने वास्ते दो शब्द ना उच्चारण करने पैण, इको ही नाल गल बन जाए। संस्कृत भाषा की एक खूबी एक, जैसे मैं थानू एक पदा सुनावा जयदेव दा, उन्होंने भी दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे बयान ना करके एक दे च कीता है। ये पदा मैनू इन्ना याद है, सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह दे समय जद इत्थे अखंड पाठी रखे जाते सन, नवे नवे उन्हां कोले पदा सुनते सन, सुनाओ। मैनू अजे तक याद है, ये पदा सुनाओ, शुद्ध सुना दोगे तो पाठी रखना नहीं ते नहीं। परमाद पुरख मनो पिमन सत आद भाव रतन, परमद भूतन प्रकृपरन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्वमयं। दो दो शब्दां दो दो अवस्थावां नूं एक शब्द विच बयान कीता है, परम आद। इहदे च ऐड़ा कढ़ दिता है, कोई शब्द बना दिता है परमाद, परमाद। दूजियां दो अवस्था ने मनो उपमंग, परम अद्भुत। ये भी दो शब्द ने, दो अवस्थावां ने। परम अद्भुत ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅੜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਜयदेव ਨੇ। परमाद पुरख मनो विमंग सत्य आद भाव रतन, परमत भूतन पर कृतप्रन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोपिमन बद अमृत तत्वमय। इस तरह संस्कृत भाषा की यह खूबी रही है, दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे विच बयान ना करके इक्को जी बयान कर। वेदन पीड़ा दर्द, ऐसी वेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही।
वेदन पीड़ा, ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है दवाई कोई नहीं, ऐसा दर्द ऐसी पीड़ा। वेदन दे अर्थ पीड़ा, हुण वेदन दे अर्थ ज्ञान, इक्को ही समय दोवें अर्थ। जिथे पीड़ा होवेगी ध्यान उत्थे ही जाएगा, अगे पिछे दंद दा नहीं पता चलता, पीड़ा है तो ध्यान दंदां दे, ज्ञान भी दंद दा। अगे पिछे सिर दा नहीं पता चलता, सिर दे च पीड़ा है। सारा दिन ध्यान सिर दा तो ज्ञान भी सिर दा ही चलता है। सारा दिन ध्यान दंद दे तो ज्ञान भी दंद दा। पीड़ा और ज्ञान, वेद, वेदन ज्ञान विद्या। ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे। इस वास्ते जद मनुख माड़ा मोटा रोगी होवे, रोग नूं बड़े खुलासे नाल, बड़े प्रमाण पूर्वक बयान करता है, दसदा है, हर एक नाल गल करता है। कई दफा ते रोगी अपने रोग दी गल इतने लंघांदे ने, सुनन वाला तंग रह जाता है, हैरान हो जाता है, गल कदों मुकाएगा, गल कदों खत्म करेगा। पीड़ा दर्द। हुण महाराज कहंदे ने एक दूसरी पीड़ा है जो मन दे चौंदी, उहनूं सोग कहंदे ने, चिंता सोग। जो कोल से चला गया उहदा शोक है। जो प्राप्त करना चाहना शायद ना मिले तो चिंता है, चिंता है। मन विच शौक ते चिंता है। जो कोल सी उते चला गया। आप इतने सारे बैठे हो, गुस्ताखी माफ, कुछ ना कुछ ते चला गया होगा। जो बुढ़ा है उसकी जवानी चली गई है, गुस्ताखी माफ। जो किसी वक्त MP MLA सी, किसी वक्त अज नहीं है, तो रुतबा ते चला गया, औहदा ते चला गया। हो सकता है किसी का कार विहार दे किसी वक्त तो अजीज मित्र है सी, अज नहीं है, अज नहीं है। तो अज नहीं है उदा सोग है, सोग। अज मैं जो चाहना पता नहीं ना मिले तो चिंता है। मन विच सोग है, चिंता है। ये दो बड़े भयंकर रोग ने मन विच। तन दे ते हजारां रोग ने। इस वास्ते जब कोई रोगी होवे ते असीं पुछ लैंदे आ, तैनूं किहड़ा रोग है, किहड़ा रोग है? क्योंकि रोग एक ते है नहीं, हजारां ने। पर जद बंदा तंदुरुस्त होवे ते सानूं पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी, तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती ते इक हुंदी है। रोगां दा ना होना तंदुरुस्ती हुंदा है। सानू पुछण दी लोड़ नहीं, तैनूं किहड़ी रोगी ने, पैर रोगी ने, या जोड़ां दा दर्द है, सारे जोड़ रोगी ने। कोई बुखार है, कोई एक तरह का बुखार है, सैकड़े किस्मां दे बुखार है। और नवे तो नवे रोग भी पैदा होंदे रहंदे ने। रोग हजारां ने, और पहचान वास्ते मनुख ने हर रोग नूं नाम भी दे दिता है। फलाना रोग है, फलाना रोग है, फलाना रोग है। इस वास्ते पुछना पैंदा है, तैनूं किहड़ा रोग है। पर तंदुरुस्त होवे ते फिर पिछण पुछण दी लोड़ नहीं, तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। हुण दूसरा पहलू मैं बयान करां, ਜਿਹੜੇ तंदुरुस्त दिखाई देंदे ने तंदुरुस्त नहीं है। क्यों? अजे रोग पीड़ा नहीं बनिया। सीमा विच, सीमा रोगी सारे ही ने। सतगुर दी बाणी जो जो दिसे
सो सो रोगी, रोग रहे मेरा सतगुरु जोगी। सारे रोगी ने ते दूसरे पासे चिंतत ही दी से सब को है। सारे चिंता तुरने, सारिਆਂ ਦੇ अंदर सोग भी है। सारिਆਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ तौर ਤੇ भी रोग ने, सारिਆਂ ਕੋਲ मानसिक तौर ਤੇ भी सोग ने, चिंता। ये दोवें तल मनुख दे रोगी ने। ये तन करके भी रोगी है, ये मन करके भी रोगी है। मन करके चिंतातुर है, मन करके सोग दे है। मन दे ये दो रोग मन्ने गए ने, सोग ते चिंता। सोग जो कोल सी चला गया, बिरा है सी चला गया, अज नहीं है। मां है सी अज नहीं है, चली गई। कोई 70-75 साल के एक बुढ़े ने भी बिरध ने परसों मां नू याद करने आया, उदी अखां भर आईयां। आया पर मां नहीं बोलती। मैं उन्होंने कहा एक रब्बों ही खेड है, जद मनुख नू किधरे अचानक चोट लग जाए, मुंह निकल जाता मां, ओही मां। प्यो नहीं निकलता, मां ही निकलता है। अचानक कोई गहरी चोट लग जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए, मुंह चो निकलता है मां। होर भी अर्ज करा, मनोविज्ञानक भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, जब कोई बहुत वड्डी खुशी मिल जाए उदों भी मां याद आउंदी है, प्यो नहीं आउंदा। बहुत वड्डा सुख है, खुशी है, सतगुरु भी बार बार कहते हैं, माई मेरे मन को सुख, माई धन पायो हर नाम। प्यो नो नहीं कहते, मां माई धन पायो हर नाम। मन मेरो धावन ते छुटक्यो, कर बैठो बिसराम। जिथे तक मैं गिनती की हो सकता है गलत होवे, 35 के करीब शब्द मैनू गुरु अर्जन देव जी ने मिले। मां नू याद कर। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी, मां नू याद कर। बाकी भी सारे किधर एक शब्द किधर दो शब्द। बहुत वड्डी चोट लग जाए, बहुत वड्डा दुख मिल जाए, मुंह निकल जाता मां मां। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए, बहुत वड्डी संपदा मिल जाए, याद आ जाती है मां। ये खुशी मां नू दसी है, पहले मां नू दसी है, माता नू दसी है। मैं उस दिन भी अर्ज की थी, पिता का संबंध 2-4 मिनट का है। 10 महीने का गर्भ धारण कर दी है स्त्री मां, फिर बाद भी संभाल कर दी है मां, फिर अपना ही शरीर पिला के, दुध की है खून चो ही बनता है, और की है अपना ही खून पिला के उन्हें वड्डा कर दी है। तो बच्चे दे 90% मां ही होती है, ਉਹਦੇ शरीर दे, ਉਹਦੇ मानसिक मंडल दे मां ही आती है। गहरी चोट लग जाए मां याद आती है, बड़ी खुशी मिल जाए मां याद आ जाती है। ऐसा रूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च भी मिलता है। माई चरण गुरु मीठे, हद हो गई हर थां थे मां, जगह जगह मां नू याद किया। खुशी समय भी पत्नी पति भरा भैन पुत्र बाद दे याद आते, मां पहले याद आती है, पहले याद आती। दुख बहुत गहरा दुख, उदों भी जबान चो मां ही निकल जाता, पुत नहीं निकलता, पिता नहीं निकलता, मां।
और गजब की गल यह है, दुनिया दियां सारियां भाषावां दे मां लई जो अखर है पहले मम्मा ही आंदा है, एम आंदा है। फारसी दे मादर कह देंदे ने, इंग्लिश दे मदर कह देंदे ने। बहुत निकटवर्ती शब्द ने फारसी दे ते इंग्लिश दे। उत्थे मदर कह देंदे, फारसी दे मादर कह देंदे ने, उर्दू दे मां कह देंदे ने, हिंदी दे भी मां कह देंदे ने। और दुख ते सुख दे समय चाहे दुनिया दे किसी कोने च मनुख है, किसी भी भाषा नूं बोलदा है, जबान चों दुख दे मां निकलदी है, खुशी दे मां याद आउंदी है, मां याद आउंदी। मैं एक दिन मुहम्मद साहब दी उच्चारण कीतियां कुछ आयतां दा टीका पढ़ रहा सी, तरजमा जो देवबंद इस्लाम दा बहुत वड्डा मदरसा है सहारनपुर दे कोल, उत्थों दी छपी हुई सी। मुहम्मद साहब समझाते हुए अपनी उम्मत नूं कहंदे ने, जमीन दे उत्ते जन्नत मां दे कदमां दे च, आसमान दे उत्ते जन्नत खुदा दे कदमां दे च। वो इंज कहता, जमीन दे उत्ते जन्नत मां दे कदमां दे च, आसमान दे उत्ते जन्नत खुदा दे कदमां दे च। इस तरह कहते हैं। और भी लंबा चौड़ा जो है खुलासा कीता है। खैर सुते से इस बाबक विचकार गल आ गई। तन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्हों रोग कहते हैं। मन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्हों सोग कहते हैं। रोग सोग, तन रोगी मन सोगी। रोग हजारां तरह दे ने, बेशुमार ने, अनंत ने। सोग जो हैगा सी चला गया, मां ऐसी चली गई, पिता ऐसी चला गया, भरा ऐसी चला गया, गुरु ना करे, संतान ऐसी चली गई, नहीं रही, मित्र ऐसी नहीं है, चला गया। तो सोग सोग। हुण जो कुछ मैनू चाहिए पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, चिंता, सोग ते चिंता। कितने मना दे सोग चिंता होवेगी। सतगुरु कहते ने, चिंतत ही दी से सब गुण सारे। कितने क तना दे च रोग होवेगा, जो जो दी से सो सो रोगी। सारे रोगी ने, एक भी तंदुरुस्त नहीं है, सब रोगी है। दुख ये सारा संसार है, सारा संसार तन करके रोगी है, सारा संसार मन करके सोगी है। इंज कहते संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सज बिना। बाली रोवे नाए गदार, नानक दुखिया सब संसार। ये जो दुख है जिसका जिक्र महाराज इस पंक्ति च पे कर देना, बाली रोवे नाए गदार, चिंता है। पता नहीं रिश्ता बनना है कि नहीं बनना, चिंता है, चिंता है। पता नहीं ये वस्तु मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं कि वो कम धंधा वो नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं मैं इलेक्शन दे जितांगा कि हारांगा, चिंता है, चिंता है। चिंता दुविधा दे च होंदी है, पता नहीं होना है कि नहीं होना, चिंता।
ਸੋਗ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋਗ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚ ਨਫਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, MP ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ नहीं है। तो सो जो है सी चला गया। सो जो मैं चाहना मेरे को होवे, तो अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना मिले चिंता। सोग ते चिंता ये दुख मन दा है, रोग दुख तन दा है। ते गुरबाणी कहती है सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी ने, एक भी ठीक नहीं है। गुस्ताखी माफ। पंक्तियां ना होंदियां तो फिर मैं ऐसा नहीं कह सकता सी। जो जो दिसे सो सो रोगी, सब रोगी। दूसरा चिंतत ही दिसे सब कोय, सारे ही चिंता तुरना है, सारे दे सारे चिंता तुरना है। हुण मैं अर्ज करा, दुख है, दुख है, फिर दुख दा कारण भी है, कारण भी है। तीसरा निवृत्ति दा साधन भी है। चौथा सुख है, सुख है, सुख है। दुख दा कारण मन दा अंधकार, अज्ञान। तो अज्ञान देखते मन भटकता है। ये चिंता सोग अज्ञान तो जन्म लेंदा है। जिस तरह बाहर अंधेरा है, तो अंधेरे से तन भटकता है, किधरे ठोकर खाएगा, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। बाहर जेड़ा ये अंधेरा है, प्रकृति आपे ही दूर कर दी है। सूरज उदय हो जाता है, चानना हो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर सूरज उदय हो जाता है, फिर प्रकाश हो जाता है। हुण मैं अर्ज करा, जीवन की रात दे ते कदी सूरज चढ़िया ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, जन्म तो लेके मरण तक, मरण अंधेरा ही अंधेरा। मन रे संसार अंध गहेरा, संसार ते अंधेरे दे है। अगर बाहर दे अंधेरे का किधरे जिक्र होंदा तो कह सकते सी नहीं, हुण ते चानना है, कादा अंधेरा है, हुण ते रोशनी हो गई है, सूरज उदय हो गए। प्रकृति रोज रात नूं दिन दे च बदलदी है, दिन नूं रात दे च। इस वास्ते रात आ गई है तो उम्मीद बनी हुई है दिन होवेगा, होवेगा। अंधेरा है, चानना होवेगा। किधरे अंधेरे दे जीवन की लोड़ पै गई रात नूं, कोई नहीं, असीं बत्ती जलावांगे, घर चों अंधेरा कढांगे, क्योंकि अंधेरे च काम नहीं हो सकता। अंधेरे च चल फिर नहीं सकते, अंधेरे च पढ़ नहीं सकते, अंधेरे च कुछ भी नहीं कर सकते। कोई गल नहीं, बत्ती जलावांगे, चानना करांगे। बाहर दे अंधेरे करके मनुख इतना दुखी नहीं है, ये मैं अर्ज करते हैं। दुख निकलते ने अंदर दे अंधकार तो, उस अंदर दे अंधकार नूं कहंदे ने अज्ञान। दुख है, दुख है, दुख है, तो ओदा फिर कारण भी है कि अज्ञान, अज्ञान है कारण है। कोई बोध नहीं है, पता कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा। मन रे
संसार अंध गहरा। तो फिर की करिए, अंधियारे दीपक चाहिए, दीवा चाहिए, अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर लईए। दीवे नाल किस तरह होवेगा, की होवेगा, दीवा भले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। इधर दीवा बालिया अंधेरा जलिया चला गया, इधर नाम दा दीपक जलाया पाप चले गए, संताप चले गए। इधर धर्म ग्रंथां दा पाठ कीता, उदी बाणी ने अंधेरा पापां दा दूर कर दिता, दुखां दा दूर कर दिता। वेद पाठ मत पापा खाए, अंधियारे दीपक चाहिए। मनुख ने ठीक है सब तो वड्डा त्योहार मन लिया दिवाली, दिवाली पर बाहर ही दीवे जलाए ने, अंदर दीपक नहीं जलाया। बाहर चानना कीता है, घर दे खुशी होवे मनुख चानने नाल प्रगट करता है, बत्तियां जलांदा है बहुत सारियां। घर दे शादी है, कोई खुशी है, कोई खुशी का समागम है, फिर घर दे बेशुमार बत्तियां जलांदा है, बड़ा चानना करता है। सजावट चानने नाल होंदी है, अंधेरे नाल नहीं होंदी। जीवन महान बनता है ज्ञान नाल, अज्ञान नाल नहीं। घर दी सजावट होंदी है चानने नाल, बत्तियां नाल। अंधेरे नाल घर दी सजावट की होएगी, अंधेरे ते घर दिखाई नहीं देता, गल खत्म। अज्ञान दे ते मनुखता दिखाई नहीं देती, मनुख दिखाई नहीं देता, इंसान है ऐसा दिखाई भी नहीं देता। या इंज कह लीए अंधेरे दे ते मनुख हैवान होंदा है, इंसान नहीं होंदा। अंधेरे दे ते मनुख पशु होंदा है, मानसिक अंधेरे दे मनुख पशु होंदा है, क्योंकि पशु सारे ही अंधेरे दे ने। अंधेरे च कुछ नहीं दिखाई देता, तो पशु नूं मां भी नहीं दिखाई देती, प्यो भी नहीं दिखाई देता, दादा भी नहीं दिखाई देता, नानी भी नहीं दिखाई देती, भैन भी नहीं दिखाई देती, धी भी नहीं दिखाई देती, चाचा ताया मामे मासियां कुछ भी नहीं दिखाई देता। अंधेरा है, अंधेरा है। अंधेरे विच मानसिक अंधेरे ते मनुख भी फिर पशु की तरह ही जीवदा। भरा नाल मुकदमेबाजी है, थोड़ी जिहा गलत है। भरा भरा नहीं दिखाई देता। ऐसिया अखबारां खबर आ जांदियां ने, फलाणे ने प्यो दा ही कतल कर दिता है। एक दो जगह ये हादसे देखे, देखण नूं भी मिले, तो प्यो उसनूं दिखाई थोड़ी दिता सी कि प्यो है। भरा नाल मुकदमेबाजी है, भरा नूं मारे है, मार छड़े है, तो इन्हों भरा थोड़ी दिखाई देता है। पशु नूं नहीं दिखाई देंदे, मां है, धी है, पिता है, भरा है, बहन है, नानी है, चाची है, सस है, सौरा है, नहीं दिखाई देंदे। ना दिखाई देना ही कारण अंधेरा है। बाहर कुछ ना दिखाई देवे, बाहर अंधेरा है। अंदर मन नूं परमात्मा और मनुखता ना दिखाई देवे, तो अज्ञानता दा अंदर अंधेरा है, अंधकार है। साल दे साल दिवाली आउंदी है, करीबन अमावस एक प्रतीक चुनिया गया है। मनुख दी जिंदगी अमावस की तरह है, मसिया की तरह है। रात भी पर हनेरी रात। पूर्णमासी की रात नूं दिवाली नहीं आउंदी, उन ते रब ने दिवाली कीती हुंदी है, चंद चाड़े आउंदा है, सानू दीवे जलाण दी की लोड़। उन्हें एक वड्डा दीवा जला छड़िया रात नूं, पूर्णमासी। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, अमावस दे च क्यों दिवाली आउंदी है? एक प्रतीक चुनिया गया है। ऐ मनुख, तू मसिया दे रात दी तरह है। कि मसिया दी रात 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की होगी, और कितनी होगी? 14 घंटे की हो जाएगी।
कदी दिन वड्डे हुंदे ने, कदी रातां वड्डियां हुंदियां। जिंदगी दे च जिहड़ी मसिया दी राह ते कई दफा जन्म तो लैके मरण तक चलदी है, कदी दीवा जलदा ही नहीं, चानना होंदा ही नहीं। बड़ी लंबी रात है, बड़ा लंबा अंधेरा है। अंधेरे राह न कोई, हो बाल भी बुन्नी होई, अंधेरे राह न कोई। अंधेरे च रास्ता दिखाई नहीं देता तो चलांगे कि किस तरह चलांगे। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अंधेरे च पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च दरिया नहीं दिखाई देता। भावे 3 हिस्से पानी है समुंदर, रात दे समुंदर भी नहीं दिखाई देता। इन्ना वड्डा समुंदर, इन्नी जगह घेरी है जिसने नहीं दिखाई देता। अंधेरे च जंगल दरख्त नहीं दिखाई देंदे, पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, शहर नहीं दिखाई देंदे, शहरां दियां गलियां नहीं दिखाई देंदे। घर विच 10 बंदे बैठे होने, एक भी नहीं दिखाई देंदा। अंधेरे एक भी नहीं दिखाई देंदा। कई दफा अंधेरे च अपना हथ भी नहीं दिखाई देंदा, नहीं दिखाई देंदा। बाहर दा ये अंधेरा दायमी नहीं है, लंबा नहीं है, आया ते गया। जे अंधेरी रात आ गई है, कोई नहीं, असी दीवा बालांगे, बत्ती जलावांगे, रोशनी करांगे। घर दे च अंधेरा है, पहले प्रवेश करदे हां, पहला काम की करदे हां, बत्ती जलांदे हां। कोई दिखाई ते देवे तां अंदर चलीए, कोई दिखाई ते देवे फिर कुछ काम करिए। लेकिन मैं फिर दोहरावा, मानसिक तल ते कई जन्मां तो अंधेरा है, इस जन्म की गल भी नहीं। जीवन नूं गुरबाणी रात नाल तशबीह देंदी है। सगली रैन अंधारी गुजरी, सेव सतगुर चानण होए। जिंदगी दी सारी रात अंधेरे च लंघ गई, अंधेरे च। तो मैं फिर अर्ज करा, अंधेरे ठोकराना है। दुख है, दुख है, फिर दुख का कारण भी है कि अज्ञान। निवृत्ति का साधन भी है कि गुरु दी बाणी, सतगुरु दे बचन। निवृत्ति का साधन भी है, तो फिर कहना पेगा सुख है, सुख है, सुख है। हुण जिथे सतगुरु कह देंदे ने, नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी ने, सारे ही रोगी ने। फिर ओही जोत पंजवें घर दे च कहंदी है, दुख नाही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते। कोई दुख नहीं है ही नहीं, सब सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। कोई हार नहीं है, जीती जित है, जीती जित है। दुख नाही आम सजना नूं लगेगा कि दोवें विरोधी बचन ने। पहली जोत कुछ होर कह रही है, पहले घर दे पंजवें घर दे ओही जोत कुछ होर कह रही है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सारे दुखी ने ते सारे रोगी भी ने, जो जो दीसे सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी, सारे ही रोगी ने, सारे ही दुखी ने। फिर ओही जोत पंजवें घर दे कह रही है, दुख नाही है ही नहीं, दुख नाही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते, बुरा नहीं सब भला ही है रे। एका एक ही नेते, ऐ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल ठीक नहीं होया, ओ कम मेरे नाल ठीक नहीं होया, ऐ बुरा हो गया, ओ बुरा हो गया। कुछ भी बुरा नहीं, जो कुछ भी होया ठीक होया, ठीक होया। जो भी मेरे नाल होया ठीक होया, और यही होना चाहिए। बड़ी वड्डी गल, बड़ी वड्डी गल। असीं ते कहांगे ये साडे नाल ठीक होया, ये साडे नाल गलत होया, ये ठीक है ते ये गलत है। सारी जिंदगी असीं यही ते निर्णय करते रहने हैं।
पर महाराज कह रहे ने बुरा नहीं, सब भला ही है रे। एका एक ही ने थे, उस एक दी नीयत कम पे कर दी, उस एक दा विधान कम पे करदा है, उस एक दा फैसला चलदा पिया है, उस एक दी समझ चलदी पई है। दुख ना ही सब सुख ही है रे, कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। हार नहीं सब जीते, कोई हार नहीं है, जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। और मैं फिर दोहरावां, दुख है, दुख है तो दुख दा कारण भी है अज्ञान, अज्ञान। फिर मैं अर्ज करा, निवृत्ति दा साधन भी है, निवृत्ति दा साधन भी है ज्ञान, ज्ञान। फिर कहना पड़ेगा कोई दुख नहीं है, सुख है, सुख है, सुख है। नहीं तो फिर कहना पड़ेगा दुख है, दुख है, दुख है और सारे ही दुखी ने। रोग है, रोग है, सारे ही रोगी ने। सोग है, सोग है, सारे ही चिंतातुर ने, सारे ही जो है सोगी ने। दुख है, इसका कारण भी है अंधेरा, अज्ञान कारण है, यही कारण है। अज्ञान करके दुख है, ना समझी करके दुख है। निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान, ज्ञान नाल अज्ञान जाएगा, दीवा बालांगे अंधेरा जाएगा। फिर सुख है, सुख है, सुख है।